हम पढ़ेंगे जोशुआ 7, 8, 9 चैप्टर किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में PSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप अंधेरे को हटाने वाले उजियाला का सामर्थ हो। आपका वचन हमारे अंदर से अज्ञानता को हटा देता है और हमें ज्ञानी बनाता है, मूर्खता में से बाहर लाता है और परमेश्वर की बुद्धिमानी में प्रवेश कराता है। हम पिता परमेश्वर आपको समझना, यही परमेश्वर हमारे ज्ञान की उन्नति है खुदा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि आज हम उस काम में जुड़े हैं खुदा परमेश्वर, जिसमें आप मौजूद हो खुदा, और आपकी प्रसन्नता का यह काम है खुदा। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपके हृदय को प्रसन्न करते हैं जब हम बाइबल रीडिंग कर रहे होते हैं और आपका पीछा कर रहे होते हैं। थैंक यू फादर। हम धन्यवाद करते हैं कि अशुद्धता, अधर्म को और हर प्रकार के पिता परमेश्वर जिससे हमारा विवेक मर चुका था, उसमें से हमको बाहर निकाला और हमें परमेश्वर शुद्ध विवेक का वरदान दिया। थैंक यू फादर गॉड कि हमें नया आत्मा, नया हृदय दिया और हमें परमेश्वर आपकी योजना में शामिल किया। धन्यवाद कि हम परमेश्वर आपकी योजना में हैं और अब हम औरों को भी पिता आपकी योजना में लेकर आने में हमें सशक्त कीजिए, सामर्थ्य बनाइए। हमारे विरोध आने वाले शैतान के पलटनों को हराने वाली सामर्थ को दीजिए, ताकि हम मनुष्यों को आपके लिए जीत सके और शैतान को उनसे अलग कर सके। नासरी यीशु मसीह के नाम में अभिषेक मांगते हैं खुदा, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। अभिषेक का रास्ता चलाइए हमको पिता, कि हम शैतान के आत्माओं को मनुष्यों में से छुड़वा दे और परमेश्वर के आत्मा से मनुष्यों को जोड़ दे। हमारी सहायता करने वाला अभिषेक रिलीज कर पिता परमेश्वर। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जोशुआ 7 चैप्टर 1 वर्स से पढ़ेंगे। But the children of Israel committed a trespass in the accursed thing, for Achan, the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah of the tribe of Judah, took off the accursed thing, and the anger of the Lord was kindled against the children of Israel. And Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Bethaven, on the east of Bethel, and spake unto them, saying, Go up and view the country. And the men went up and viewed Ai. And they returned to Joshua and said unto him, Let not all the people go up, but let about 2 or 3,000 men go up and smite Ai, and make not all the people to labor thither, for they are but few. So there went up thither of the people about 3,000 men, and they fled before the men of Ai. And the men of Ai smote of them about 36 men, for they chased them from before the gate even unto Shebarim, and smote them in the going down. Wherefore the hearts of the people melted and became as water. And Joshua rent his clothes and fell to the earth up to his face before the ark of the Lord until the eventide, he and the elders of Israel, and put dust upon their heads. And Joshua said, Alas, O Lord God, wherefore hast thou at all brought this people over Jordan to deliver us into the hand of the Amorites, to destroy us? Would to God we had been content and dwelt on the other side Jordan. O Lord, what shall I say when Israel turneth their backs before their enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land shall hear of it, and shall environ us round, and cut off all our name from the earth. And what wilt thou do unto thy great name? And the Lord said unto Joshua, Get thee up, wherefore liest thou thus upon thy face? Israel hath sinned, and they have also transgressed my covenant which I commanded them. For they have even taken off the accused thing, and have also stolen and dissembled also, and they have put it even among their own stuff. Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they were accursed. Neither will I be with you any more, except ye destroy the accursed from among you. Up, sanctify the people,
and say, Sanctify yourselves against tomorrow, for thus saith the Lord God of Israel, there is an accursed thing in the midst of thee, O Israel. Thou canst not stand before thine enemies until ye take away the accursed thing from among you. In the morning, therefore, ye shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord taketh shall come according to the families thereof, and the family which the Lord shall take shall come by households, and the households which the Lord shall take shall come by man. And it shall be that he that is taken with the accursed thing shall be burned with fire, he and all that he hath, because he hath transgressed the covenant of the Lord, and because he hath wrought folly in Israel. So Joshua rose up early in the morning and brought Israel by their tribes, and the tribe of Judah was taken. And he brought the family of Judah, and he took the family of the Zerites, and he brought the family of the Zerites man by man, and Zabdi was taken. And he brought his household man by man, and Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. And Joshua said unto Achan, My son, give, I pray thee, the glory to the Lord God of Israel, and make confession unto him, and tell me now when thou hast done, hide it not from me. And Achan answered Joshua and said, Indeed, I have sinned against the Lord God of Israel, and thus have I done. When I saw among the spoils a goodly Babylonian garment, and 200 shekels of silver, and a wedge of gold of 50 shekels weight, then I coveted them and took them. And behold, they are hid in the earth in the midst of my tent, and the silver under it. So Joshua sent messengers, and they ran unto the tent, and behold, it was hid in his tent, and the silver under it. And they took them out of the midst of the tent, and brought them unto Joshua and unto all the children of Israel, and laid them out before the Lord. And Joshua and all Israel with him took Achan the son of Zerah, and the silver, and the garment, and the wedge of gold, and his sons, and his daughters, and his oxen, and his asses, and his sheep, and his tent, and all that he had, and they brought them unto the valley of Achor. And Joshua said, Why hast thou troubled us? The Lord shall trouble thee this day. And all Israel stoned him with stones, and burned them with fire. After they had stoned them with stones, and they raised over him a great heap of stones unto this day. So the Lord turned from the fierceness of his anger, wherefore the name of that place was called the Valley of Achor unto this day. Joshua chapter 8, first verse. And the Lord said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, and arise, go up to Ai. See, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land. And thou shalt do to Ai and her king as thou didst unto Jericho and her king. Only the spoil thereof and the cattle thereof shall ye take for a prey unto yourselves. But lay thee an ambush for the city behind it. So Joshua arose, and all the people of war to go up against Ai. And Joshua chose out 30,000 mighty men of valor, and sent them away by night. And he commanded them, saying, Behold, ye shall lie in wait against the city, even behind the city. Go not very far from the city, but be ye all ready. And I and all the people that are with me will approach unto the city, and it shall come to pass when they come out against us, as at the first, that we will flee before them. For they will come out after us, till we have drawn them from the city. For they will say, They flee before us, as at the first. Therefore we will flee before them. Then ye shall rise up from the ambush, and seize upon the city. For the Lord your God will deliver it into your hand.
And it shall be, when ye have taken the city, that ye shall set the city on fire according to the commandment of the Lord shall ye do. See, I have commanded you. Joshua therefore sent them forth, and they went to lie in ambush and abode between Bethel and Ai, on the west side of Ai. But Joshua lodged that night among the people. And Joshua rose up early in the morning and numbered the people and went up, he and the elders of Israel, before the people to Ai. And all the people, even the people of war that were with him, went up and drew nigh and came before the city and pitched on the north side of Ai. Now there was a valley between them and Ai. And he took about 5,000 men and set them to lie in ambush between Bethel and Ai on the west side of the city. And when they had set the people, even all the host that was on the north of the city, and their liers in wait on the west of the city, Joshua went that night into the midst of the valley. And it came to pass, when the king of Ai saw it, that they hasted and rose up early, and the men of the city went out against Israel to battle, he and all his people, at a time appointed before the plan. But he wist not that there were liers in ambush against him behind the city. And Joshua and all Israel made as if they were beaten before them, and fled by the way of the wilderness. And all the people that were in Ai were called together to pursue after them. And they pursued after Joshua, and were drawn away from the city. And there was not a man left in Ai or Bethel that went not out after Israel. And they left the city open and pursued after Israel. And the Lord said unto Joshua, stretch out the spear that is in thy hand toward Ai, for I will give it into thine hand. And Joshua stretched out the spear that he had in his hand toward the city, and the ambush arose quickly out of their place. And they ran as soon as he had stretched out his hand. And they entered into the city, and took it, and hasted, and set the city on fire. And when the men of Ai looked behind them, they saw, and behold, the smoke of the city ascended up to heaven, and they had no power to flee this way or that way. And the people that fled to the wilderness turned back upon the pursuers. And when Joshua and all Israel saw that the ambush had taken the city, and that the smoke of the city ascended, then they turned again and slew the men of Ai, and the other issued out of the city against them. So they were in the midst of Israel, some on this side and some on that side, and they smote them, so that they let none of them remain or escape. And the king of Ai they took alive, and brought him to Joshua. And it came to pass, when Israel had made an end of slaying all the inhabitants of Ai in the field in the wilderness, wherein they chased them, and when they were all fallen on the edge of the sword, until they were consumed, that all the Israelites returned unto Ai, and smote it with the edge of the sword. And so it was, that all that fell that day, both of men and women, were 12,000, even all the men of Ai. For Joshua drew not his hand back, wherewith he stretched out the spear, until he had utterly destroyed all the inhabitants of Ai. Only the cattle and the spoil of that city Israel took for a prey unto themselves, according unto the word of the Lord which he commanded Joshua. And Joshua burnt Ai, and made it an heap forever, even a desolation unto this day. And the king of Ai he hanged on a tree until eventide. And as soon as the sun was down, Joshua commanded that they should take his carcass down from the tree, and cast it at the entering of the gate of the city, and raise thereon a great heap of stones that remaineth unto this day. Then Joshua built an altar unto the Lord God of Israel in Mount Ebal,
as Moses, the servant of the Lord, commanded the children of Israel, as it is written in the book of the law of Moses, an altar of whole stones where which no man hath lifted up any iron, and they offered thereon burnt offerings unto the Lord, and sacrificed peace offerings. And he wrote there upon the stones a copy of the law of Moses, which he wrote in the presence of the children of Israel. And all Israel and their elders and officers and their judges stood on this side the ark, and on that side before the priests the Levites, which bear the ark of the covenant of the Lord, as well the stranger as he that was born among them, half of them over against Mount Gerizim, and half of them over against Mount Ebal, as Moses the servant of the Lord had commanded before, that they should bless the people of Israel. And afterward he read all the words of the law, the blessings and cursings, according to all that is written in the book of the law. There was not a word of all that Moses commanded which Joshua read not before all the congregation of Israel, with the women and the little ones and the strangers that were conversant among them. हम पढ़ेंगे जोशुआ 9 chapter. First verse. And it came to pass, when all the kings which were on this side Jordan, in the hills and in the valleys, and in all the coasts of the great sea over against Lebanon, the Hittite and the Amorite, the Canaanite, the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite heard thereof, that they gathered themselves together to fight with Joshua and with Israel with one accord. And when the inhabitants of Gibeon heard what Joshua had done unto Jericho and to Ai, they did work willingly, and went and made as if they had been ambassadors, and took old sacks upon their asses, and wine bottles, old and rent and bound up, and old shoes, and clouted upon their feet, and old garments upon them, and all the bread of their provision was dry and moldy. And they went to Joshua unto the camp at Gilgal, and said unto him and to the men of Israel, We become from a far country. Now therefore make ye a league with us. And the men of Israel said unto the Hivites, Peradventure ye dwell among us, and how shall we make a league with you? And they said unto Joshua, We are thy servants. And Joshua said unto them, Who are ye, and from whence come ye? And they said unto him, From a very far country. Thy servants are come because of the name of the Lord thy God, for we have heard the fame of him, and all that he did in Egypt, and all that he did to the two kings of the Amorites that were beyond Jordan, to Sihon king of Heshbon, and to Og king of Bashan, which was at Ashtaroth. Therefore our elders and all the inhabitants of our country spake to us, saying, Take our victuals with you for the journey, and go to meet them, and say unto them, We are your servants, therefore now make a league with us. This our bread we took hot for our provision out of our houses on the day we came forth to go unto you. But now, behold, it is dry, and it is moldy. And these bottles of wine which we filled were new, and behold, they be rent, and these are our garments and our shoes, and become old by reason of the very long journey. And the men took of their victuals, and asked not counsel at the mouth of the Lord. And Joshua made peace with them, and made a league with them, to let them live. And the princes of the congregation sware unto them. And it came to pass at the end of 3 days, after they had made a league with them, that they heard that they were their neighbors, and that they dwelt among them. And the children of Israel journeyed and came unto their cities on the 3rd day. Now their cities were Gibeon, and Shephirah, and Beeroth, and Kirjath Jearim.
And the children of Israel smote them not, because the princes of the congregation had sworn unto them by the Lord God of Israel. And all the congregation murmured against the princes. But all the princes said unto all the congregation, we have sworn unto. Thank you, Jesus. लूका के वचन को देखेंगे स्क्रीन के ऊपर। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। उसका मतलब तुम प्रार्थना में बने रहो, और कमर का मतलब अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन में कसे रहो, और तुम्हारा वचन, परमेश्वर का वचन तुम्हारी बुद्धि के अंदर वास किए रहे, ताकि तुम अपने दिमाग में और अपने एक्शंस में खुदावंद के साथ बने रहो। वचन और प्रार्थना के जरिए अपने हाथों को उठाओ, मेरे साथ एक मन हो जाओ। उसने कहा तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। अपने दिल में बसाओ इस वचन को। यीशु मसीह ने कहा मुझे, बोलो मुझे कहा, मेरी कमर बंधी रहे, मेरी कमर बंधी रहे, मेरा दिया जलता रहे, मेरा दिया जलता रहे। खुदावंद को बोलो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरी कमर बंधी रहे, मेरी कमर बंधी रहे। आज से मेरा ध्यान तेरे वचनों पे रहे, आज से मेरा ध्यान तेरे हर वचनों अंधकार पर की रहे। शक्ति हर अंधकार जो की तेरे वचनों शक्ति से मुझे हटाती है, जो तेरे वचनों से मुझे हटाती है, होली गोस्ट फायर उस पर आ जाए। थैंक और यू मेरे दिए जीसस। जलते रहे, और मेरे दिए मेरा जलते प्रार्थना रहे। वाला जिंदगी, मेरी प्रार्थना वाली मेरी जिंदगी, प्रार्थना वाली लाइफ मेरी प्रार्थना वाली हमेशा लाइफ बनी रहे। हमेशा अपने बनी हाथों को रहे। उठाओ, होली स्पिरिट से ग्रेस को रिसीव करते हुए। रिसीव होली स्पिरिट ग्रेस। कमरे बंधी रहे, दिए जलते रहे, कमरे बनती रहे, दिए जलते रहे, कम दुआएं शुमार हो तैयार, वफादार हो तैयार, हो तैयार, वफादार हो तैयार। दिया कमरे बनती रहे, दिए जलते रहे। थैंक यू जीसस। हम आगे पढ़ेंगे, 18th वर्ष से पढ़ेंगे। And the children of Israel smote them not, because the princes of the congregation had sworn unto them by the Lord God of Israel. And all the congregation murmured against the princes. But all the princes said unto all the congregation, we have sworn unto them by the Lord God of Israel. Now therefore we may not touch them. This we will do to them, we will even let them live, lest wrath be upon us because of the oath which we swear unto them. And the princes said unto them, let them live, but let them be hewers of wood and drawers of water unto all the congregation, as the princes had promised them. And Joshua called for them, and he spake unto them, saying, wherefore have ye beguiled us, saying, we are very far from you, when ye dwell among us? Now therefore ye are cursed, and there shall none of you be freed from being bondmen and hewers of wood and drawers of water for the house of my God. And they answered Joshua, दिए जलते रहे, कमरे बनती रहे, दिए जलते रहे, दिए जलते रहे, कमरे बनती रहे, दिए जलते रहे, दिए जलते रहे, दिए जलते रहे, दिए जलते रहे, कमरे बनती रहे, दिए जलते रहे, कमरे बनती रहे, दिए जलते रहे। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Amen. आज से इस चर्च के ऊपर, गुरदासपुर चर्च के ऊपर, ऑनलाइन चर्च के ऊपर मैं डिक्लेयर करता हूं, प्रार्थना वाली जिंदगी को रिसीव करो। Amen. We receive in the name of रिसीव करो Jesus. प्रार्थना वाली We जिंदगी को। receive. Amen. 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 रिसीव करो प्रेयर लाइन को। Amen. शिक्षा की मैंने कहा, हम रिसीव करते हर हैं। एक कर्ज, हर एक शैतान की ताकत आपकी जिंदगी को छोड़े और जाती रहे। Amen. Hallelujah. आमीन हो जाओ। Amen. Amen. Amen.
मैं देख रहा हूँ स्वर्गदूतों को बहनों की तरफ खुदाबंद की प्रार्थना का आत्मा उसका मेंटल उसकी वो जिससे एलिया ने अलीशा पर चद्दर डाल दी थी, मैं देख रहा हूँ पवित्र आत्मा को, मैं देख रहा हूँ एंजल्स को चद्दर डालते हुए प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ बहनों की और यीशु मसीह के नाम में चद्दरों को डालते हुए पवित्र आत्मा चद्दरों को डाल रहे हैं, वो एंजल चद्दरों को डाल रहे हैं। आमीन, आमीन हो जाए आशीष मैंने कहा। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। मैं देख रहा हूँ बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ, चेयर सेक्शन की तरफ, होली स्पिरिट उस मेंटल को, उस प्रार्थना की चद्दर को आपकी ओर डाल रहा है। आमीन, 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 आमीन हो जाए। आमीन। हम आगे पढ़ेंगे 24 वर्स से। आमीन, आमीन। And they answered Joshua and said, Because it was certainly told thy servants how that the Lord thy God commanded his servant Moses to give you all the land and to destroy all the inhabitants of the land from before you. Therefore we were sore afraid of our lives because of you, and have done this thing. And now behold, we are in thine hand, as it seemeth good and right unto thee to do unto us do. And so did he unto them, and delivered them out of the hand of the children of Israel, that they slew them not. And Joshua made them that day hewers of wood and drawers of water for the congregation and for the altar of the Lord, even unto this day in the place which he should choose. खुदावन तो मेरा पहला प्यार, और तेरी जगह कोई नहीं लेगा। थैंक यू जीसस, हम रिसीव करते हैं। थैंक यू जीसस। हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से यही अध्यायों को। थैंक यू जीसस। रिबांदका पहाशर बेखसिरालर बहुखसियांदुरा रहत अल्लर पहाखसियांदुरा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके जैसा परमेश्वर इस जगत के अंदर कोई नहीं। आप हमारे सृष्टि करता हो। थैंक यू फादर। नई सृष्टि बनाने के लिए आपको धन्यवाद करते हैं, जो मनुष्य के बस की बात नहीं है पिता। तूने हमारे लोहे की तरह पक्का बना हुआ कॉन्शियस को तोड़कर पिता परमेश्वर तूने हमें नम्र हृदय दिया और परमेश्वर तेरे वचन के अधीन लाया। ये एक बहुत अद्भुत चमत्कार है हमारे जीवन के लिए पिता। ये एक बहुत बड़ा अद्भुत काम है इस जगत में जो लोगों के जीवनों में हो रहा है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं इस महान कामों के लिए, चमत्कारों के लिए, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे यहोशू 7 अध्याय पहले वचन से। आकान का पाप, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान जो जेरह वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। यहोशू ने यरीहो से आई नामक नगर के पास, जो बेतावन से लगा हुआ बेतल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर आई का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर आई को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु आई के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब आई के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उत्तराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इस्राएली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुँह के बल गिर कर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे। और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तो अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है?
भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इस्राएलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। तो क्यों इस भांति मुँह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु का सत्यानाश न कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए सवेरे को तुम गोत्र गोत्र के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्र को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े वह घराना घराना करके पास आए। फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। यहोशू सवेरे उठकर ये इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके समीप ले गया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया और जब्दी पकड़ा गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा गोत्र का अकान को, जो जेरह वंशीय जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू अकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे और मुझसे कुछ मत छिपा। अकान ने यहोशू को उत्तर दिया, सचमुच मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया, और वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे और उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी है और सब के नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरह वंशी अकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गदहों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरों को, अर्थात जो कुछ उसका था, उन सबको अकोर नामक तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए, और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक अकोर तराई पड़ा है।
यहोशू 8 अध्याय आई नगर का ले लिया जाना। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले और आई पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने आई के राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है, और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही आई और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। अतः यहोशू ने सब योद्धाओं समेत आई पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुन कर रात ही को आज्ञा देकर भेजा, और उनको यह आज्ञा दी, सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सब के सब तैयार रहना, और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले के समान हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे यह सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे। इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो तब उसमें आग लगाकर फूंक देना। यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना। सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतेल और आई के मध्य में और आई के पश्चिम की ओर बैठे रहे। परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। यहोशू सवेरे उठा और लोगों की गिनती लेकर इस्राएली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे आई की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए, और आई नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और आई के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5,000 पुरुष चुनकर बेतेल और आई के मध्य नगर के पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और अब लोगों ने नगर के उत्तर की ओर की सारी सेना को और उसके पश्चिम और घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया। तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब आई के राजा ने यह देखा तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपने सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा। और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली ओर लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल के मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने लगे, करने को पुकार के बुलाए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए, और न आई में और न बेतेल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा आई के ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया और झटपट उसमें आग लगा दी। जब आई के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उन्हें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर। और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर आई के पुरुषों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। इसलिए वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए। कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। अतः उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया।
और आई के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। जब इस्राएली आई के सब निवासियों को मैदान में अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था घात कर चुके और वे सब के सब तलवार से मारे गए, यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने आई को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे। और आई के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने आई के सब निवासियों का सत्यानाश न कर डाला तब तक उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने आई को फुकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया। वह आज तक उजाड़ पड़ा है। और आई के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसका शव वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दिया गया और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज तक बना है। एबाल पर्वत पर व्यवस्था का पाठ 30 वचन से आगे। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है। उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई, और वे क्या देशी क्या परदेशी सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवीय याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग जो संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिज्जीम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले से आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाए। उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पढ़ कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इस्राएल की सारी सभा और स्त्रियां और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। यहोशू 9 अध्याय पहले वचन से। गिबोनियों का छल। यह सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी जितने राजा यरदन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महासागर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और आई से क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गदहों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़ लगे हुए मदिरा के कुप्पे लाद कर अपने पांवों में पुरानी पैबंद लगी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फुफुंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इस्राएली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इस्राएली पुरुषों ने उन हिब्बियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं,
क्योंकि हमने यह सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मिस्र में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यरदन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सिहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तरोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उससे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो यह सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियाँ बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई है। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। मूर्खता किया। उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन बाद उनको यह समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इस्राएली कूच करके 3रे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यात यारीम पहुंच गए, और इसराइलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इसराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाए। अतः प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम शापित हो, और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों का तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया, और अब हम तेरे वश में है। जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए। परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसे आज तक है। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, ये कितना गहरा भेद और रहस्य भरा हुआ वचन हमने पढ़े हैं खुदा, हमारे अंदर इसके शांति दे और इसके आनंद दे खुदा, क्योंकि ये वचन परमेश्वर जो हमारा मास्टर है, पिता परमेश्वर चलाने वाला, हमें सृष्टि करने वाला, उसके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे मन सोच बनने के लिए पिता ये वचन हमें दिए गए हैं। हमारी ये मन की सोचें बना खुदा, और इसको हमें दृश्य में देखना सिखा, ताकि हम परमेश्वर तुझसे कनेक्टेड रहे और तेरी आराधना में आनंदित रहे। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान।
रिबांत खबर रहा से स्किन बरहा लरबहा कासियांदुरा रिदाना मखशर देखतीन रबहम बरहुसा 2 years Bible reading plan Romans 5 chapter 1 verse 11 verse Psalms 103 रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन से 11 वचन भजन संहिता 103 हम पढ़ेंगे अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में। जब हम व्यक्तिगत समय में से पढ़ते हैं तो हमारा मन तैयार रहता है परमेश्वर जो सुधार लाना चाहता है उसे ग्रहण करने के लिए, और पवित्र आत्मा हमको सिखाता है, हम उस सीखने में आनंद उठा सकते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं सभी ने अकेले में पर्सनल टाइम व्यक्तिगत समय में ही पढ़ना है। आपको जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करे वैसे आप पढ़ सकते हैं। निश्चय यही करना है, परमेश्वर के आत्मा ने हमको सिखाना है और निश्चित हमने परमेश्वर के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों में, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।